टीच ऑनलाइन पे आज फिर साहिब आपके सामने बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन लेके आ रही हूँ और इस दफ़ा जो है हमारे पास फिर एक और नए सेट ऑफ ट्रेनर्स और सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि बात करेंगे पेरेंटल एंगेजमेंट इन एजुकेशन। आजकल के वक्त में जबकि ऑलरेडी इतना बड़ा चैलेंज है एक पेरेंट को एंगेज करना और उसको सेटिस्फाई करना, और कोविड के बाद से तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो गई है क्योंकि पेरेंट्स ने ज़्यादा engagement automatically दिखाना शुरू कर दिया है, so it has become very challenging for the schools, yet over here experts पता नहीं देखते हैं कि फेवर में बात करते हैं या उसके अगेंस्ट में बात करते हैं, but let them lead the conversation and let's see what they are going to say. Initially they're going to introduce themselves and थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे पैनल डिस्कशन का मैं चेंज करना चाहूंगी, वो ये कि आफ्टर दे गोइंग टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स they will generate the conversation themselves. They are really brilliant at it. मैंने backstage देख लिया है. So let's enjoy that. Yes, please introduce yourself, Ms. Durra Zainab. My name is Durra Zainab, and right now, currently, I'm working at AKUID as a documentation officer. Ms. Busha. जैसे आप लोग naturally चल रहे थे, please go ahead. Assalamualaikum. I'm Bushra Faisal and I've been associated with education since 2007. I love to learn and that's why I'm here, and thank you Ms. Saima for inviting us on this panel, और let's see कि हम क्या करते हैं और आप क्या changings करती हैं. You people will do wonders, I know that. Ms. Farah. Assalamualaikum, this is Faragul and I've been teaching career from past 5 years and waiting to engage ourselves or give our insights about the topic. It's a very interesting topic and I think we will have a very great discussion over here. Definitely we are going to have a great discussion. Thank you so much, Ms. Farah. Yes, Mr. Tausif. Yes, Assalamu alaikum. This is Asif Kazi. I'm an educationist serving the industry for the past 24 years. Thank you for inviting me to this panel. And it's a very solid and legitimate topic, engagement in education. And I'm very hopeful that we will have a very productive discussion tonight, inshallah. Definitely. Ji, Ms. Shaista. Assalamu alaikum everyone. I'm Shaista Siddiqui and I worked in early years for about 30-35 years. Or currently I'm working in Aspire Grammar School as a regional academic coordinator for early years. और early years मेरा passion है और इसके और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मेरा मोस्ट फेवरेट है. मेरा बस चले तो मैं सारे पेरेंट्स को घर लेकर आ जाऊं. And I love early years educators, trust me. Ji, Ms. Rubina. Assalamualaikum everyone, I'm Rubina Bakhtiar and I've been an educationist for the last 33 years and I've been teaching in different capacities from early years to adulthood. So I'm here today with this discussion, so let's see where we get today. Looking forward to hear it from you, Ms. Rubina. Yes, Ms. Shaista. Ms. Shaista. Can we hear you? I don't think so. I think उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है. जी. I assume so. ओके, तो आप लोगों में से पहला क्वेश्चन मैं खाली थ्रो कर देती हूँ, उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने. मैं यहाँ पे एंजॉय करने वाली हूँ. सो टेल मी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपस में डिस्कस करें, बताएं जरा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. आई एम इन फॉर इट. होनी चाहिए, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. इसलिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल, और इसलिए भी होनी चाहिए कि अगर आप पेरेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होती है. आपको पता ही नहीं कि पेरेंट कहाँ है, कौन है और बच्चा घर पे क्या कर रहा है, पेरेंट बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्व है, उनको कैसे लेके चलना है. तो ये एक ऑन गोइंग कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन वाली चीज़ है कि थ्रू आउट द ईयर आप पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करें. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. मैं ये भी सोचती हूँ कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं दे शुड बी वेरी वाइज इन इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स, ताकि उनसे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स को मिल सके, उनके अपने बच्चों को भी मिल सके, कम्युनिटी के दूसरे बच्चों को भी मिल सके.
So we should be wise in engaging the parents. ये Yeah, बहुत that's a ज़रूरी very है. essential part of, I think, of upbringing the children, that the parents should be involved uh, consistently. उसके बगैर I think we cannot bring the change, improvement in our students. We cannot work together. So it's very essential part that we Yeah, need to work. Or But parents parents I are think the at this time that most of the parents are lacking. Most of them, not I would not say all of them, but yeah, most of them are lacking in it because they think कि बस स्कूल भेज दिया है, हमारा काम खत्म हो गया, अब टीचर जाने और बच्चा जाने. तो वो वाला जो सीन होता है that they really do not care, बस वो the only thing that they come up with is that when they get the result. फिर उस Miss, वक्त they yes, get Miss, बैलेंस come sorry. and दिस बहुत वाला दिस ज़रूरी इज होती ओनली है. फॉर प्राइमरी ऑनवर्ड्स. अर्ली इयर्स में जो है ना, पेरेंट का बस नहीं चलता कि वो स्कूल में जाके बैठ जाए, क्योंकि हाँ बच्चा बड़ा छोटा होता है तो बड़े वो होते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा That's कैसे what सेटल I'm होगा, क्या saying. होगा क्या नहीं होगा. वो और एक दफा जाना शुरू हो गया Yeah, प्राइमरी के that I बाद, वो agree. खत्म That खत्म. I agree. Uh, That और I agree. मैं अर्ली ईयर्स मैं में तो वही पेरेंट का कहूँगी बेस्ट नहीं चलता कि वो पैम्पर्स ला के दे दें और एक्सपेक्ट करें कि टीचर विल चेंज द लेकिन पैम्पर्स एज वेल. मेरा पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अर्ली इयर्स ना ये एक बड़ी स्पेशल क्लास है, द मोस्ट स्पेशल क्लास ऑफ योर लाइफ. उधर टीचर का भी बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव द राइट टीचर इन दैट क्लास. एंड आई से कि पेरेंट्स शुड बी allowed to trust you. They एग्जैक्टली. should be allowed inside the classroom with the children, with the teacher, so they can trust their kids with you. ये बड़ी important है. It's very important. I feel वही, that as बिल्कुल an मिस, early year teacher. लेकिन बिल्कुल मैम मिस मैं वही रबीना, यू कहूँगी आर कि राइट. बैलेंस इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. बैलेंस इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा Yes. भी अगर हो जाता है ना, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे वो अर्ली ईयर्स हो, चाहे वो फिर ऑनवर्ड्स हो. क्योंकि और अगर बिल्कुल भी नहीं होता, कहीं कहीं ऐसा होता है कि अर्ली ईयर्स में भी पेरेंट्स कहते हैं कि बस स्कूल के वाले किया और ख़त्म, अब हमारी थोड़ी जान छूट गई. तो ये बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कहीं कहीं, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती. तो Exactly. बैलेंस इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि जहाँ जब नीड है तब इन्वॉल्वमेंट हो, और उसको फिर प्रॉपरली लेके चला जाए, पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी. हाँ, यू और नो, मिस बुशरा, बैलेंस इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अनबायस्ड इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. स्कूल की बिल्कुल. तरफ से हर पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने का मौका देना चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जो एंगेज कर रहे हैं विलिंगली, बस उन्हीं को ऑन बोर्ड लिया जाए, तो बल्कि क्या इसके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप की जा सकती है, क्या 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 किया जा सकता है, व्हाट पॉसिबिलिटीज आर देयर टू क्रिएट कि भाई ठीक है, अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है तो कहाँ कहाँ किया जाए, कहाँ कहाँ नहीं किया जाए, बिकॉज हर जगह तो नहीं किया Positive जा सकता. environments होते हैं, different ways होते हैं to communicate with the parents. First thing जब session start होता है, we do communicate through orientation. We tell the whole process के साल पूरे साल क्या होगा. Later बिल्कुल. on we move on, and then we think that there where the parent is needed, we tell them that you can communicate on one-to-one meetings, so you can take the appointments and come over. So that one process. Then another way is that you can call up and talk to the teacher in school. And one other way that we were introduced was that we are supposed to talk through emails, so that no personal context should be given to the parents. So there should be some personal gap should be there. So yeah, through emails it was something very official. So head को भी पता होता है, we keep them in CC. So what are we communicating with the parents? So we have the evidence of what we have communicated with the parents. तो बिल्कुल. वो एक एक चीज, evidence दूसरी चीज आपके ये पास बहुत जमा हो जरूर, जाता है. दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट को ये पता हो कि अगर उनका, अव्वल तो पेरेंट्स हार्डली इन्फॉर्म करना पसंद करते हैं कि उनका द चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे बिकॉज ही इज सिक. और अगर बीमार बच्चा है तो वो एक हफ्ता भी नहीं आएगा तो टीचर भी, और अगर वो ज़रा नोटी भी है तो टीचर तो सुख का सांस लेती है, ओके दैट चाइल्ड इज़ नॉट हियर टुडे, थैंक गॉड. लेकिन अगर ये हो जाए कि पेरेंट, अगर बच्चा एब्सेंट है, द चाइल्ड इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर मोर देन 2 days, very first day the email or the telephone call should go. You know what, your child is not here today in the school, so I would like to know कि why he is absent, he or she is absent. तो इससे भी पेरेंट को एक एक फीलिंग होती है कि हम वी आर वैल्यूड. और इसके अलावा ये कि कुछ जैसे क्लास पेरेंट अगर हों
जैसे आप 1-2 महीने के बाद स्कूल के खुलने के बाद इफ़ यू अरे गिव आउट सम forms like we are going to have class parent, individual class parent for every section. तो उससे भी होता है कि हर क्लास में सारे केजीज में से कोई एक पेरेंट आप चूज कर लेते हैं कि वो पढ़ा लिखा है, आउटस्पोकन है, सोशलाइज करता है, तो उसको आप क्लास पेरेंट बना लें एंड दैट पेरेंट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद ऑल द केजीज। वो नर्सरी में भी हो सकता है, अर्ली ईयर्स में भी हो सकता है, और इससे फिर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन, इवन ये क्लास पेरेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी यूजफुल फॉर अरेंजिंग द इवेंट्स। वो आपके स्कूल में जो कोई भी इवेंट होता है तो फिर वो सारे पेरेंट्स को मिला के कंट्रीब्यूशन के साथ वो इवेंट भी करा रहे होते हैं, वो तो क्लास आपको पेरेंट जो है बहुत ना वो खतरनाक भी हो सकता है। सॉरी, वो क्लास पेरेंट खतरनाक भी हो सकता है। नहीं तो ये तो आपका है ना कि टीचर जो है हर क्लास के पेरेंट्स को तो जान जाती है 2 महीने Actually, किसका it is all टेम्परामेंट about क्या है, developing the rapport and डेवलपिंग making sure that रैपो, there is एग्जैक्टली, transparency. बिल्कुल। आपका पहले ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर अनएबल टू डेवलप द ट्रस्ट देन यू विल बी नोवेयर। आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना है पहले ही शुरू ही दिनों में, वरना तो फिर आप सारे वक्त बैठे रह जाएंगे कि किसको बनाएं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। रीडिंग विद डैड्स कर लें, डैड्स को इन्वॉल्व करें, वो आके किसी दिन आपके पास अपने सेक्शन में, डिफरेंट सेक्शन अगर आपके पास हैं बहुत सारे एक ही लेवल के, तो आप डैड्स को बुलाइए, तो फ्रॉम अर्ली ईयर्स टू ऑनवर्ड्स ग्रेड 8 वो आके स्टोरी रीडिंग करें या कोई और एक्टिविटी कराए बच्चों को, तो इससे भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा पेरेंट्स को एक हाँ, फील जाती है मैं कि अच्छा वी समझती हूँ आर कि हम इन्वॉल्व। लोग इस तरह के पेरेंट्स को क्लास की डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए भी एग्जैक्टली, असाइन कर सकते हैं। लाइक अगर डॉक्टर्स हैं, दे कैन गिव अ टॉक ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लेटेस्ट चल रहा है, सम न्यू मेडिसिन या कोई बीमारी या व्हाट एवर, सेल्फ केयर लाइक दैट। हाँ, और इसी तरह से डिफरेंट फादर प्रोफेशंस हैं, उनके बारे में आके बात की जा सकती है। सो आप कॉफ़ी वी कैन मॉर्निंग्स कर लें, ग्रैंड एग्जैक्टली, पेरेंट्स को बुला लें, उनके साथ बातचीत करा दें, और बच्चे भी उस वक्त जो होते हैं अर्ली ईयर्स के हों या और भी, तो दे फील प्राउड, माय डैड यस इज़ हियर टुडे, माय यस ग्रैंडमा इज़ हियर टुडे। तो एग्जैक्टली। पेरेंट भी खुश होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी खुश होते हैं, और इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं बिल्ड करेंगे तो फिर आप अब इन एक सब तो, के लिए एक चीज और है ना कि हमें यस प्लीज, ऐसा वेलकमिंग वाला एनवायरनमेंट बनाना होगा। सॉरी, वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ, वॉइस और पेरेंट्स को भी अगर कॉल चली जाती है तो वो सबसे पहले उनका यही होता है कि एक कंप्लेन है इसीलिए बुलाया होगा। इसीलिए बुलाया होगा वो, थोड़ा सा उनके तो कुछ पहले पेरेंट तो ये करते रैपो ही बनाने हैं। की जरूरत है हाँ, ना कि तो ये तो टीचर्स के लिए भी होता है ना कि टीचर्स टीचर्स को भी के, जब एडमिनिस्ट्रेशन बुलाती है, एक पर्ची आती है प्लीज सी मी, तो जान निकल जाती है कि जो है वो हेड ने बुलाया, कुछ तो किया है मैंने। तो नहीं मेरे तो ख्याल आपको से पेरेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज लार्मिंग। मैं आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होगा। जब हम टीचर के साथ वो रेपो बनाएंगे तो टीचर भी फिर पेरेंट्स के साथ वो रेपो बनाने का सोचेगी, तो वो ये बात तो दुरुस्त है आपकी बिल्कुल। लेकिन ये जो वेलकम वाला एनवायरनमेंट है या एक वार्म एनवायरनमेंट है या एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज से इंटरेक्ट करना, जैसे मैंने एक दफ़ा कहीं पे सुना था कि कभी कभी पेरेंट्स को आप ऐसे भी बुला लें कि चले आए आज हमारे साथ एक चाय की प्याली पी लें, टी कॉफी हम कोई होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं एग्जैक्टली, करेंगे, टी डे कोई कॉफी डे होना नहीं। चाहिए। बिल्कुल लेकिन कॉफ़ी अब तो अगर आप मॉर्निंग्स, एजुकेशन इज सो मॉर्निंग कॉफी, कॉफ़ी मॉर्निंग कर लें उनके कॉफी, साथ, या स्कूल पे कर लें, कहीं बाहर आप कर लें। वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप जो है ना आगे उनको एंगेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन अगर एग्जैक्टली। आप सिर्फ ये बुलाएं कि आओ हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे की गलती बताएं और तुम वो आए और वो कहें आओ हम आपको आपकी टीचर की गलती बताएं, तो फिर तो एक सिर्फ एक वो वॉर और मैदान जंगी होगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट I think it's हो all जाएगी। about creating partners in the education of the child. यस You have to create them like a partner कि भाई ठीक है, आपने उनसे कुछ टास्क आपने उनसे करा दिया, कुछ टास्क आपने उनका कर दिया, कहीं ना कहीं आपने उनसे लर्निंग इन्वॉल्व कर ली, और हर पेरेंट में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोई एबिलिटी होती है जो कि स्कूल में बिल्कुल यूटिलाइज की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सही। बिल्कुल। आप सर, अगर उनके कहेंगे? साथ अपना वीकली प्लान भी अगर थोड़ा-सा अगर भेज देना it शुरू कर depends देना, कि from one student to the other, कि एक बच्चे के अंदर किस चीज़ की जो है आपको लगता है कि ही इज़ लैकिंग बिहाइंड, उसको कहीं पे वो स्टडीज़ में होता है, कहीं बिहेवियरल में होता है, कहीं
आपके एंगेजमेंट इंटरेक्शन में होता है, तो अकॉर्डिंगली वी कम्युनिकेट दैट टू द पेरेंट्स कि इसमें ये चीज़ है एंड देन हाउ वी नीड टू कम अप विद दिस। And I जहाँ पे think स्टडीज का इशू आता है वहाँ वी मेक श्योर कि हम उनको कोई प्लान, वी गिव देम अ प्लान दैट वी आर फॉलोइंग दिस एट होम इन स्कूल एंड यू नीड टू सपोर्ट दिस एट होम। So in that way we can work together to bring up the child's progress, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है अलोन, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स की मेरा एक्सपेक्टेशन विद द टीचर इज अलॉट। दे थिंक कि बस वो क्लास में है, शी विल बी केटरिंग एवरी नीड ऑफ द चाइल्ड एंड दे डू नॉट रियली व्हाट एज व्हाट यू सेड दैट ये प्राइमरी अबव होता है। तो आई एम बिकॉज आई एम अ प्राइमरी टीचर, तो उस चीज़ के हवाले से क्या आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। दे रियली डोंट सी द बिगर पिक्चर कि हमें पेरेंट्स को एक आई एनकाउंटर वन पेरेंट व्हेन आई टेल कि ये होमवर्क नहीं करता, ये इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज लैकिंग इन सम ऑफ द टास्क। सो व्हाट शी कम अप दैट आई डोंट गेट टाइम एट होम, 6:30 में बच्चों को सुला देती हूँ, उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। सो यहाँ पे तो पेरेंट एंड आई टोल्ड हर दैट इट्स नेसेसरी कि आप थोड़ा सा 1 आवर, आधा घंटा थोड़ा सा टाइम आप दें, so that you and me can stand together for to know the progress of the child. लेकिन वहाँ पे थोड़े पेरेंट्स लैक करते हैं एट टाइम्स। तो एक You know आइडिया तो what? बहुत अच्छा Parent, इन्होंने दिया, every शाइस्ता ने दिया कि yeah. पेरेंटल ग्रुप्स बन जाएं, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स बन जाएं कि भाई वो आपस में एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। मोस्टली उन ग्रुप फर्दर से शिकायतें हो रही होती हैं, आई डोंट थिंक दैट दे आर नहीं सपोर्टिंग सारा नहीं नहीं, डिपेंड करता है सिंस अगेन। कोविड ना पेरेंट्स के साथ तो बहुत डिफरेंट किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। पहले होता था पेरेंट टीचर मीटिंग, आ रहे हैं, बुलाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। अब तो आफ्टर कोविड तो पेरेंटल ग्रुप्स बने हुए होते हैं। एवरी अदर स्कूल इज यूजिंग दैट। every day children's progress is being mentioned, homeworks are mentioned, groups बने हुए हैं, parents know each other, parents know teachers, teachers know the parents. अब तो communication is better than before. Or you know what, Miss Rubina, you know, you have to be very conscious about your language. इसलिए Yes, कि behind the scene all the parents are connected. तो बिल्कुल। आप एक को बात अगर आप कर रहे हैं, if you are communicating one thing to one parent, you have to communicate that same thing to सेम every थिंग ओवर टू parent. Yes, एवरीवन। Otherwise वो एक ट्रांसपेरेंसी बनना है। बिल्कुल गॉसिप स्टार्ट होती है नॉन स्टॉप, और वो जी। स्कूल के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी, That's why it's फ्रूटफुल नहीं needed to है, have हेल्दी the नहीं है। communication officially, official communication होनी चाहिए, वरना ऑफिशियल होनी चाहिए, otherwise एटलीस्ट अगर कोऑर्डिनेटर misconduct या हेड बनेंगे को then it will cause a problem. इन्वॉल्व करके होनी चाहिए। एग्जैक्टली दूसरा एक ये कि देखिए, ये एक पेरेंट टीचर इन्वॉल्वमेंट जो है एजुकेशन के, इट इज टाइम टेकिंग। तभी ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपने पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात किया और कल वो आपको लाके कोई गिफ्ट दे देंगे। आपको बहुत ज़्यादा प्यार से, आराम से, स्लोली, ग्रेजुअली वो कॉन्फिडेंस आप गेन कर सकते हैं। तब कहीं जाकर एट द मिड ऑफ द ईयर और सेकेंड टर्म में कहीं जाकर फिर आपको लगता है कि हाँ, ये पेरेंट के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है, या ये पेरेंट को ये समझता है कि हाँ, ये इस टीचर से मैं बात करूँगी, शी इज़ गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसलिए कि जब तक पेरेंट और टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा स्कूल के अंदर बच्चों की एकेडमिक्स के लिए, तो बच्चा खुद को भी वो कहेगा कि मम्मा को तो पता ही नहीं है व्हाट आई एम डूइंग एट होम। Okay, you tell mama, mama will not listen because she's so busy with the mobiles and with the shoppings and बिल्कुल। socializing things. और देखिए कहीं ना कहीं उस जब पेरेंट्स देखते भी है ना कि बाकी पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो दे फील हाँ, रिस्पॉन्सिबल कि हाँ ठीक है, आई बिल्कुल, टू बी इन्वॉल्व बिकॉज़ एवरीबॉडी एल्स इज और इन्वॉल्व। एग्जैक्टली। इन तो ये नाउ बहुत डेज तो जरूरी है पेरेंटिंग भी बहुत पेरेंट्स को डिफिकल्ट इन्वॉल्व चीज है ना। करना। अब तो पेरेंटिंग भी इज नॉट इजी। पहले तो पेरेंटिंग भी बहुत इजी थी, अब पेरेंटिंग भी बहुत चैलेंजिंग हो गई है। और बहुत रुबीना, तो दिस इज हमको वेयर एज एन दिस इज वेयर आवर एजुकेशनिस्ट, रोल कम्स इन अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे अवेयरनेस सेशन पेरेंट्स के लिए भी करने चाहिए। जी दैट्स वेयर बिल्कुल। आई वाज गेटिंग टू You कि know, अब एज एन first we have एजुकेशनिस्ट to हमें पेरेंट्स educate. को भी काउंसिल करना होता है। काउंसलिंग, नॉट ओनली काउंसलिंग मिस्टर बीना, पाकिस्तान में मतलब अब जब से मैं देख रही हूँ, जब 4-5 साल से जैसे अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो जितना भी मैंने पेरेंट्स को देखा है, वी हैव टू एजुकेट द पेरेंट्स। इन फैक्ट यस यस डेफिनेटली, काउंसलिंग नॉट एट ऑल काउंसलिंग, वो तो सुनेंगे ही, बिल्कुल लेकिन आपको एजुकेट, बिकॉज नॉट एवरी बिल्कुल मदर, एवरी फादर इज नॉट एजुकेटेड। उनको नहीं बिल्कुल। पता And कि they वो have अपने और घर the पे कैसे knowledge हेल्प of कर सकते हैं। parents. So you ये have to एजुकेशनल teach them नीड्स the भी चेंज letter हो गई है ना। sounds, the letter names and formation.
everything. And Just for be that you need to yourself. itself has have the taken a new workshops of that earlier में भी transformation. आपको workshops for For training parents कि हम क्या बिल्कुल strategies apply करते हैं in the classroom. early years में भी, And we even should have, primary years में भी. yeah, primary बिल्कुल also. प्राइमरी ईयर्स में भी ऑफ कोर्स Yes, बिल्कुल that ऑफ कोर्स which topic and basically in math में हम लोग जैसे अगर कोई rising star book है, so we follow that workshops कि हम parents को कैसे वो guide करें कि हम book को कैसे हम लेके चलते हैं in the class. बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल बस और वहाँ पे आके parents थोड़ा confuse हो जाते हैं. अर्ली बिल्कुल. ईयर्स So, में तो खैर बच्चे देखें बहुत जी, छोटे बात यह होते है हैं. कि पेरेंट्स जो हैं, दे आर वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर्स एंड दे आर सेंडिंग the most precious thing of their life to a school. to our school. So we as service providers are supposed to take care of them, whether they are early birds or they are A-level students. And it's a continuous effort. It requires continued effort. It's a long-term assignment as educator, as administrator. Everyone is talking about from his or her own perspective. I mean, the early years experts are also sitting. A teacher has shared that they would like to change, they would like to, they are rather expecting us to change their diapers as well, which from a parent's side is not an illegitimate expectation, although it's practically not possible. However, we have to engage, we have to connect with our stakeholders. We have to see that where are we lacking and where are they lacking, and try to communicate in such a perfect way that there is hardly any ambiguity. Modern days, every good school has a portal, and they communicate through that portal, and they bring them on board right in the beginning through open days, through orientation day, and they communicate their yearly objectives right from the word go. Then WhatsApp group with students and WhatsApp group with parents. Normally, the school administration for VPs, headmasters, or the coordinator, whichever hierarchical structure they have, they connect with the parents, and the teachers are supposed to have WhatsApp group. I have more than 12 WhatsApp groups with my students where I communicate with them, or I'm supposed to communicate with them on daily basis. And when the exam time comes, I literally go crazy. From 2 p.m. till 10 p.m. I'm answering. And Ma'am Shaista has given a very valid point, has mentioned a very valid point, that we should be very, very careful about our language, our expression, even the written, the communication has to be spot on. Otherwise, whether we are teacher or student, sorry, or administrator, we can be in big, big trouble, right? So portal and WhatsApp group have become a normal thing to communicate Yes, with your very stakeholders, whether they are students or teachers. One true. more valid point mentioned by Ma'am Shaista, and I would also like to mention it to my school administration. Why not we have that drop-in date, right? Yes, Although very I'm a nice. teacher and it's gonna bounce ड्रॉप इन back, and डेज. many of my colleagues, my my colleagues, they will go mad, and they will say कि तुम्हें क्या जरूरत है नई नई बातें लाने की. So, but it's a good idea because on You know, Mr. PTMs we Tauseef, don't get, yeah, get yeah, उस वक्त जब we आपका don't when get you have much time to much communicate. time, when you have PTM, parent teacher meeting, that day you don't have the whole crowd. जब आप ऑलरेडी अपनी कर रहे होते हैं ड्रॉप इन डेज के अंदर मीटिंग वन ऑन वन बेसिस पर, तो आपके पास फिर पीटीएम के अंदर ऊपर आपके पास लोड नहीं आता लोड नहीं और आप होता. आराम से, हाँ, लोड नहीं Every होता parent is बिकॉज यू trying हैव to tell ऑलरेडी स्पोकन टू उधर दोज उनको Yeah, पेरेंट्स. पता है but कि क्या अदरवाइज भी आ चुकी है और हाँ, आएगी भी आगे आज, भी. हाँ, हाँ, तो एक तो सेटिस्फेक्शन रहती है. I सेटिस्फैक्शन think होता we है. are in a process. I mean, people of my age, we are in a process of understanding. We have read it, but we have not conceived it, that we are a service provider now. We are a facilitator now. We are not the teacher the way we used to be 20 years ago. Things have evolved very dramatically. Yes, true. Technology has taken over, and we are, I mean, I'll be very honest, I am not afraid of my subject, my teaching style, this and that. Yes, the margin of improvement is always there, but I'm more fearful of the use of technology. Very true. And
and students are far ahead of us. Yes. And I always learn from students. As far as technology is concerned, I do learn new tips of iPhone from my students, and some other gadgets, how to edit videos and this and that, and they know they will teach you in 5 minutes, and that's बिल्कुल the ऐसे ही scary है part, right? So rapport building, connection with your stakeholders is absolutely imperative if you want to be a This successful connects me to teacher. this And connects me to this part also कि जहाँ जब आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में जहाँ पे आपका एक fear है, it is not only your fear, it's also parents' fear, and so it is हाँ. also yeah, of something that course, parents also don't know. So there has to yeah, be somebody in the school who's a technology again technology trainer for teachers and for the for the parents. parents. yeah, Okay, yeah. you cannot One let relevant the children are going beyond in this field and you are not aware of it. Miss Simon, yeah, you're So I'm very not right. During COVID, जब हमने when we started taking parents online, children online, तो parents को they didn't even know कि उनका अपना attire क्या हो. They were wearing vest and sitting in front of the camera. I mean, उनको बताना पड़ता था कि भाई आप प्रॉपर उसमें आइए, प्रॉपर ड्रेसिंग में अपने, या बच्चों को आप while we are teaching, do not feed the child. तो उन ये सारी अवेयरनेस भी हमने उस वक्त कोविड के ज़माने में पेरेंट को दी है लेकिन कि वही कैसे वाली आप बात है लॉग ना इन हो गए। कि ट्रांसपेरेंसी आई तो हमने प्रोवाइड की, ऑल्दो इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग्स अदरवाइज एज वेल, क्योंकि यस, देखिए कैमरा इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू टू द पेरेंट और न्यू पेरेंट्स टू द बच्चा इटसेल्फ, एंड वी नो दैट दे आर गोइंग टू बी डीलिंग विद बच्चा। हर बच्चा आपको सेल्फी देता हुआ नजर आता है, हर बच्चा आपको तस्वीर खींचता हुआ नजर आता है। आई नो ट्रू, दैट दिस इज माय नीस इज लाइक ओनली 3 years 4 years ओल्ड, वो टक उसका फोन हाथ में आता है, वो 10-15 तस्वीरें ऐसे ही खींच लेती है। but we know that it's the era, so we have to, मतलब कोविड का वेट करने की भी जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। हम अगर ये पहले कर चुके होते तो चीजें पहले बड़ी करते थे। स्ट्रीमलाइन होती। So सही awareness is सही somewhere or बात। the other becomes part of an educational institute, being an educational institute for ourselves, कि ठीक है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेरेंट्स को हम इस तरह से भी इन्वॉल्व करें कि उनको जहाँ जहाँ हमें अवेयरनेस है वहाँ वहाँ तक हम उनको अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको एक और आइडिया है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने इसके का, साथ सॉरी, साथ एक जी जी प्लीज आप बोलिए। एक और आइडिया भी है। अर्ली ईयर्स में इवन प्राइमरी में भी जा सकता है। हम ये करें कि अगर हम अपने वीकली हमारा जो लेसन प्लान्स होते हैं उसकी एक आउटलाइन कोर सब्जेक्ट्स की हम पेरेंट्स को भेज दें डायरीज में लगाकर, एंड उनको इन्वॉल्व करें। इफ यू हैव एनीथिंग एट होम, बुक्स और स्टफ टॉयज और व्हाटएवर आपके पास घर पे अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ भेजें हमें क्लास में वो बच्चों को कराने के लिए। जैसे बच्चों का होता है शो एंड टेल का, तो इस तरह से पेरेंट्स को पता होता है एग्जैक्टली कि दिस वीक व्हाट दे आर गोइंग टू कवर। और फिर वो बुक्स वगैरह भी भेजते हैं, घर पे भी बच्चों को हेल्प करते हैं। और पेरेंट्स बच्चों को एक ये थ्रेड जो एक होता है ना कि मम्मा को पता चल जाएगा कि व्हाट आई डिड एट स्कूल। तो ये भी एक बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें उस सिलसिले में भी, वरना तो बच्चा तो कहीं पे भी किसी भी तरह से आपके काबू में नहीं आएगा। अगर मम्मा को नहीं पता, ये पेरेंट्स को नहीं बताएंगे आपको। सो इसलिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना एकेडमिक्स में इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज को आप टेकर कर सकें। जी, ये टेक्नोलॉजी की जो बात हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इसकी फ्लिप साइड भी है कि अभी हमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा लर्निंग कैपेसिटी की, कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज एडवर्सली अफेक्टेड लर्निंग कैपेसिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड दे हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। नाउ द सबसे बड़ी बात जो चैलेंज मेरे सामने है वो ये है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है उसमें लिखना है आपको, यू हैव टू राइट वेल एंड यू हैव टू राइट in a specific way, otherwise you won't get any good marks, which is business studies. So students are not ready to write because अब वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो टिक बॉक्सेस और मल्टी बहुत आदी हो गए हैं, and they are very reluctant to write correctly and in a very specific way, which is the requirement of Cambridge International Standards. Secondly, जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, फ्लिप साइड की मैं बात करूंगा, वो ये है कि उनकी जो फिजिकल
एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, एंड दे आर वेरी लेज़ी लेथार्जिक एज़ वेल, दे डोंट लाइक टू बी आउट ऑन द फील्ड। और बहुत से बच्चे जो हैं वो जाके भी वो जैसे खुदा न खास्ता बीमार हैं वैसे ही घूमते रहते हैं, बजाय ये कि वो किसी एक्टिविटी का हिस्सा बने, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, व्हिचएवर इज़ अवेलेबल। सो ईज़ी लेथार्जी, फॉर ग्रांटेड, नाइविटी, ये सारी चीज़ें भी जो हैं हमारी एक्सेसिव यूज़ में जो टेक्नोलॉजी की है, उसने हमें दी हैं। हमारे स्पेसिफिक रेफरेंस टू एजुकेशन में बात कर रहा हूँ। लेकिन this is part and parcel of our life. We cannot live without technology now, and inclusion of technology in our sector, which is education sector, is absolutely imperative, is absolutely mandatory, inevitable, unavoidable, and whatnot. Sorry. नहीं देखिए So I would like to connect what Sir Kaji and Miss Sama, as you said, that awareness and technology. So as I have experienced one parent, there was a child कि जिसका मतलब she was getting wild and she used to express it by drawing, and she used to draw some very wild pictures in terms of violence and all that. So that was something very alarming because she was very young age child, and that was very alarming. So of course through a proper channel we communicated with the parent, and when she came to me for a meeting, and I told those parents, I told them that maybe this is what it coming from, that how she is being utilizing the technology, the maybe the videos or something, that whatever she's watching, that's coming from there, I believe, because that's something, that was whatever she has drawn over there was something not, I would not say that that child would be doing on her own. थोड़ा सा एक वो जो एक आ रहा था एनिमेशंस और ये सारी चीज़ें जो बच्चे आजकल बहुत वीडियोस इस चीज़ की देखते हैं, तो दैट वाज कमिंग फ्रॉम देयर, एंड आई सुपरवाइज टोल्ड भी देम कि होगा आप तो इसको डेफिनेटली मॉनिटर करिए। तो अवेयरनेस ऑफ दोज पेरेंट्स वर आल्सो नेसेसरी, बिकॉज वही बात है कि उनका बैकग्राउंड, दे वर फ्रॉम पठान फैमिली, तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा नहीं था इस चीज़ में। बट अगेन मैंने उन चीज़ को बीइंग दी रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर हैड responsible टू, educator had to, तो आई टोल्ड देम कि so I आपने, told them कि आपने वॉइस इज एक्टिंग, आई डोंट नो व्हाई। voice is acting, I don't know why. ट्राई ना अभी किसी ने बड़ा अच्छा अभी पॉइंट किसी ने मेंशन बड़ा किया अच्छा था कि पॉइंट मेंशन किया था आप कि जो देख रहे हैं आपने कि देखना देखना ये है कि आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर कोई उर्दू में बात करना चाहते हैं तो कुछ बुरी बात नहीं है, आप तो उर्दू कम्युनिकेट करें। English is not our first language. The point is that our message must get across and the parent must understand what we are saying. और facilitate जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। And when the parents are on your side, your job becomes easy, whether we are teachers or administrators. सो So एट टाइम्स वही rapport मतलब है building, कि पेरेंट्स connection, को भी timely अवेयरनेस देनी communication is ज़रूरी पड़ जाती है, बिकॉज दे माइट नॉट बी गेटिंग दैट पॉइंट दैट वेयर द चाइल्ड इज गोइंग, और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आई सो थिंक अभी हम लोग को माइट पेरेंट्स को लेकिन जो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक या दफा में ये कभी कभी नहीं होगा। आई कैन शेयर सेवरल एग्जांपल्स over here with this, with reference to this point, but this is probably not the right forum to go that much candid, but I share one particular small example without naming the school कि मैंने इसी तरह बच्चे की एक फाइल थी। I was working as head of the school at that time, तो वो A levels head था मैं उस वक्त। तो वो बच्ची की ए लेवल्स की बच्ची थी, उसकी फाइल थी और कोई इस तरह की कम्युनिकेशन थी which was documented, and we sent a letter and it was posted जैसे भी dispatch हुआ, जो भी उसका था तरीका, लेकिन वो लेटर हमें वापस आ गया कि जी ये तो वहाँ पर डिलीवर नहीं हुआ। बहरहाल वो लेटर मैंने वापस उसकी फाइल में लगवा दिया। और उनकी वालदा आई जो कि शी वाज फ्यूमिंग, शी वाज वेरी अपसेट दैट व्हाई डिडंट यू कम्युनिकेट एट टाइम, व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म अस, दिस एंड दैट। बाय द वे फोन नंबर भी जो दिया गया था फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में, वो भी उस वक्त एक्टिव नहीं था। तो मैंने उनको वो लेटर दिखा दिया, मैंने कहा जी ये आपका पोस्टल एड्रेस है, फोन आपका वैसे ही नहीं चल रहा और ये एड्रेस है, इस पर हमने आपको रब्ता किया था, लेकिन ये लेटर वापस आ। तो उसने लेटर पढ़ा, सॉरी एड्रेस पढ़ा, और उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, एंड द बेटी डिड नॉट हैव एनी आंसर टू दैट बिकॉज दैट वाज द रॉन्ग पोस्टल एड्रेस।
So if we communicate right at the right time in the right way, we are safe and we have done what we could do to facilitate. Simple as that. लेकिन ये बात ये है कि it's an ongoing process. ये एक दफा करने से नहीं है. हर साल हमें एक नई इनिंग खेलनी होती है, एक नए जज्बे से, एक नई कमिटमेंट से जो है ना, पहले से ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रूव करना होता है as teachers or administrators. I That's why remember. it's called. It's not a profession. It's a passion. मिस I आपको पेरेंट को इस इन ये टेक्नोलॉजी से भी हमें इस सिलसिले में भी एजुकेट करने की आई थिंक ज़रूरत होती है कि सेफ सर्फिंग क्या है इंटरनेट के, बच्चा कहाँ तक जा सकता है, कि पेरेंट को ही आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप एक नज़र, यू नीड टू कीप एन आई ऑन द चाइल्ड वेयर व्हिच साइट्स ही इज विजिटिंग टू। There are तो strategies for इसके से everything, Shaista. There is strategy for everything, for controlling over the technology, ओवर for looking at टेक्नोलॉजी, what they are doing, for developing that trust, for timers, yes, developing we that can choose the partnership. timers and everything. We are more aware, although we may not be parents, but we are more aware as to how to go about it, because हमारे पास कहीं ना कहीं रिसर्च स्किल्स है, हमारे पास कहीं ना कहीं जो है वो स्टडी स्किल्स है, हम उस चीज को डेवलप कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आई डिड अ सेशन अबाउट स्क्रीन टाइम, कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए. आई डिड अ सेशन अबाउट कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप घर में यूटिलाइज करें विदाउट बीइंग exposed child, without being exposed to certain things जो कि ऑफेंडेबल चीजें होती है, या कुछ इस तरह की चीजें होती है जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें. तो भाई देयर आर thousands and thousands of strategies which we have researched, we found out, and trust me on this one, we have discussed the part wherein the parents, we tell them कि आपको नहीं पता बच्चा क्या बोल रहा होता है. बच्चे LOL कहते हैं, आपको पता चल गया क्योंकि आपने बी वर्ड करना शुरू करना यूज करना शुरू कर दिया. डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ POS? पेरेंट्स ब्लैक हो जाते हैं. व्हाट इज POS? मैंने कहा POS मींस पेरेंट्स ओवर शोल्डर. मैम वही वाली बात होगी ना कि हमें ये सारी चीजें पेरेंट्स तक ये तो मुझे भी पहुंचानी अभी पता चला जी. हाँ, मुझे भी अभी पता चला है. पेरेंट्स ओवर शोल्डर, POS means POS. parents over shoulder. That means parents are standing right behind me. Change the topic. So, और ये हम पेरेंट्स को बता रहे होते हैं, ऑल्दो दैट कि हम कोई बच्चे नहीं है, हम कोई ऐसे नहीं है, लेकिन बिकॉज रिसर्च हैज शोन अस एवरीथिंग कि भाई ये चीजें हो रही है, पेरेंट्स आर नॉट अवेयर. इसके ऊपर पूरी बुक है, ये शॉर्ट साइन लैंग्वेज लेटर्स के ऊपर पूरी बुक है. हाँ, आई वाज अमेज्ड टू फाइंड आउट कि इट हैज अ प्रॉपर बुक and we don't even know Exactly. because So we're not point using is it. कि yes, the point is कि at least we should be aware of that basic vocabulary, जहाँ पे हमें तो पता चले कि हम बच्चे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल और बजाय इसके कि हमने क्यों बच्चों को आइसोलेट करके उनको कंप्यूटर जो है कमरों में दिए हुए. It should be बिल्कुल somewhere in the common area, somewhere in a place wherein the kitchen is completely directly kitchen से visible हो कि कंप्यूटर पे क्या चल रहा है. बिल्कुल This will make it a possibility कि child स्मार्टफोन अम्मा देख रही है, भले वो कुछ बोले या ना बोले, अम्मा देख रही है, चलते फिरते नजर आएगा अम्मा को. एंड डेवलप बिल्कुल दैट ट्रस्ट. बच्चे से कहिए कि मुझे ये ढूंढ के दो, ताकि बच्चे का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ ठीक है, मेरी अम्मी को पता है कि मैं यूज कर रहा हूँ, मैं ये ढूंढ रहा हूँ. बस एक्चुअली आजकल आजकल कनेक्शन आजकल विद द चाइल्ड इज लैकिंग बिहाइंड ना. बच्चों का पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ही नहीं बन रहा, So it नहीं क्योंकि is बन very, रहा पेरेंट्स खुद इतना बिजी होते हैं खुद और इसलिए, और बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी and this is one of the यूज टू reasons एंड. Farah, we need to involve them in the education. This is one of the reasons we need to यस involve them in the education. और एक जैसे कि चीज जो आपने निकल कहा, आई है ना बच्चों का की भी कहना प्ले. होता है ना कि ये हमारे मकसद की, या हम ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते, जबकि पेरेंट्स को ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए इन्वॉल्व होने के लिए बच्चे के साथ. वरना पेरेंट्स सब कहते हैं नहीं हमारा ज़माना नहीं है, हम तो नहीं सीख सकते. वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को छोड़ के बैठ जाते हैं. लेकिन वक्त के साथ साथ उनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए. बिल्कुल और एक चीज निकल आई है, अब यहाँ पे भी मैंने देखा कि यहाँ पे भी हो रही है प्ले डेट एंड स्लीप ओवर. बिल्कुल. अब वो चाहे यस गर्ल्स हो या बॉयज हो, ये इक्वली हार्मफुल भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है. उसके लिए फिर ये हो जाता है कि आप पेरेंट्स को बात करें, अगर आप प्ले डेट पे भेजें बच्चे, यानी कि स्कूल से ही अपने कपड़े स्कूल में ले आते थे, और फिर ये होता था कि आज हम अपने फ्रेंड के घर जाएंगे. अब ये टीचर की जॉब है, ये टीचर की ड्यूटी होती है कि वो कॉल करे पेरेंट को कि चाइल्ड इज गोइंग विद समबडी एल्स, यू टेल मी आइदर आई सेंड हिम और नॉट.
तो कहेंगे या प्लीज सेंड हिम बिकॉज ही हैज अ प्ले डेट ओवर देयर। तो आप पेरेंट को फिर कहेंगे नहीं, आप जाएं, खुद लेके जाएं, देखें तो माहौल घर का क्या है, किस तरह टीचर के लोग बाकायदा हैं, क्या नोट है। लिख के देती हैं कि इनका स्लीप ओवर हो रहा है या इनकी पार्टी हाँ है, तो आप प्लीज सेंड, मतलब इनको बिल्कुल। भेजें, एंजॉय करें। ये बाकायदा टीचर की रिक्वेस्ट हो रही होती है, मतलब पेरेंट्स को वो लिख लिख के दे रही होती हैं कि आप इन लोगों को जाने दें, गेट टुगेदर करने दें। तो पेरेंट्स, अब वो, अब लेकिन वही बात है ज़रूरी ना कि आप है कितना उसके लिए कि इन्वॉल्व आप हो रहे हो। पेरेंट्स रिसर्च करें कि भाई जाएं साथ में, देखें कौन लोग हैं, बिल्कुल, कितने बड़े लोग हैं, घर पे का क्या माहौल है, ड्राइवर्स हैं, कुक्स हैं, गार्डनर्स हैं, यही कितना आइसोलेशन का मैं ये एनवायरनमेंट क्या समझती है। हूँ ना, यही सारी रीजंस हैं, वी शुड बी एजुकेटिंग पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन्वॉल्विंग हो, देम। बिल्कुल। आप क्योंकि पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व जैसे करिए कि अर्लियर बच्चे को टाइम ही ना आई मिले सेड, प्ले डेट पे कहीं जाने का, पेरेंट्स के साथ जाएं। दूसरा ये कि पेरेंटिंग का भी तो पूरा हाउ, पैराडाइम चेंज हो गया ना। बिल्कुल, देयर इज अ पैराडाइम बिल्कुल। शिफ्ट, एंड तो सेकेंडली it is not just हाँ, about collaborating with bacha, it is also यस about collaborating with parents. It is parents यस, collaborating with parents, but it is actually a triangle. It is actually a triangle कि बिल्कुल। स्कूल हो गया और पेरेंट्स हो गया और चाइल्ड हो गया। जब तक ये तीनों कॉर्नर्स मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं जब तक नहीं। it is not going to इट happen. विल Things नॉट are बी। not going to happen. यस, लेकिन आई थिंक ऐसे देयर ही है। सर्टेन टाइप्स ऑफ पेरेंट्स एज वेल। एक वो पेरेंट होता है जिसको हमें खींच के लाना पड़ता है कि हाँ अपने बच्चे की प्रोग्रेस को देखो कि क्या है। एक पेरेंट होता है जो खुद इन्वॉल्व इतना हो रहा होता है दैट इट इज एट टाइम्स इट इज लाइक कि वही Annoying एज हो व्हाट जाता यू है कि सेड, हाँ, please अनोइंग हो पेरेंट जाता है। और एज व्हाट यू सेड। अर्ली ईयर्स में तो पेरेंट चाहते हैं कि एवरी डे की उनको डिटेल बताएं कि आज उनके बच्चे ने कौन सा लेटर सीख लिया, आज उसने क्या पढ़ लिया। तो अर्ली ईयर्स में तो अर्ली इतना ईयर्स चल में रहा ज्यादा होता है, कंसर्न होते हैं पेरेंट्स, और वो कंसर्न बहुत होते ज्यादा हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। प्राइमरी कर में रहे फिर भी होते हैं। बहुत कम हो जाता है, और प्राइमरी में कम्युनिकेट करने या उनको एंगेज करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई इवेंट किया है कि जहाँ पे मैं पेरेंट्स चाह रही हूँ कि पेरेंट्स विजिट करें और आए और बच्चों की परफॉर्मेंस देखें, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा हो, स्टेज पे जा रहा हो। हम्म, जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, स्टेज पे नहीं जा रहा होगा, उसका पेरेंट नहीं आएगा। हाँ ये बहुत जरूरी है कि हर बच्चा, चाहे वो कितना ही मूडी हो या कुछ हो, उसको आप बल्कि उसको जाग ला के सामने ही खड़ा करेंगे ताकि पेरेंट देखे कि मेरा आई बच्चा एग्री। कर क्या रहा है। हाँ अब एग्जैक्टली। मतलब वी कैन आल्सो डू दैट कि असेंबलीज में भी हम पेरेंट्स को इनविटेशन दे सकते हैं, सो दैट बिकॉज एग्जैक्टली। पेरेंट्स का कंसर्न ही होता है कि हमारा बच्चा नहीं बोल रहा, ही इज नॉट कम्युनिकेटिव, ही इज नॉट यू नीड टू कॉन्फिडेंट। शो तो एग्जैक्टली। उसमें उसके लिए वी कैन डू दैट दैट वी कैन कॉल अप द पेरेंट्स टू अटेंड द असेंबलीज। तो उसमें एटलीस्ट दे कैन सी दैट व्हाट द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग। इवन असेंबलीज, पोइट्री कल्चरल एलोक्यूशन, ये सेलिब्रेशन सारी होते चीजें हैं, हो आपका छोटी सकती हैं। ईद मिलन पार्टी हाँ, कर लें, आप जो है पार्टी वो कर ले। 14 अगस्त का फंक्शन कर लें। एवरी कल्चरल इवेंट कैन बी equally important for the parent to come visit and see what the child is doing. They want to पेरेंट But know क्या the है, environment is जी I right. मैम। think that parent engagement during COVID time was very much there because, of course, online था तो every parent was watching us, so it was like an open classroom already. तो उस वक्त तो हम ये कह जो सकते थे कि सीक्रेट था ना, क्लोज parent क्लासरूम का जो सीक्रेट था वो ओपन हो गया था। open डोर क्लोज वाली पॉलिसी खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी। जो अर्ली ईयर्स में और प्राइमरी में तो चले एक ये वाला माइंड सेट होता है ना पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा करे, हम उसे देखें। लेकिन सेकेंडरी में मुझे ऐसा लगता है, और बीइंग अ मदर भी मुझे ऐसा लगता है, जो टीन एज के टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं और टीन एज प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको डील करने के लिए भी टीचर्स और मतलब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही वक्त होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी भी बन रही होती है और करेक्टर भी बन रहा होता है। लेकिन मिडिल स्कूल के बच्चे जो है ना, वो उनकी फीलिंग्स थोड़ी बिल्कुल। डिफरेंट होती है। वो कहते हैं कि एग्जैक्टली। अगर मम्मा स्कूल आएगी तो मैं मम्मा बॉय बन जाऊंगा, तो मम्मा शुड नॉट कम टू स्कूल, नो मैटर हाँ, व्हाट। लेकिन हाँ वो जी। उनके क्लास में बहुत ज़्यादा अलग सा उनका एक जो है बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। फिर मदर्स उनको डिफरेंट तरीके से वही बच्चों बच्चों वाले अंदाज में लेके चल रही होती हैं, वहाँ उनका थोड़ा सा जो है ना वो स्टबनेस स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल। चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब भी डिस्कस करना मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है कि हमें बिठा के पेरेंट्स को डिस्कस करना पड़ता है कि भाई अब ये टीन एज में आ गए हैं, इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलना शुरू करें, वरना ये आपको प्रॉब्लम कुछ, क्रिएट हाँ, करना जो शुरू पेरेंट्स कर जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उस वक्त पे, अगर टीनेजर्स की बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बच्चे बहुत एग्जैक्टली। इरिटेट होते हैं, और फिर वो रास्ते ढूंढ रहे होते हैं कि मैं किस तरह से कौन सा स्केप ढूंढूं।
वो So उस that is वक्त very मदर्स important. को बिठा के, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, क्योंकि वो इस वक्त प्रिवेसी चाह रहे होते हैं थोड़ी सी, तो वो भी समझाना पड़ता है। और ये बहुत क्रूशल सी हो रही होती है एज, और उसमें पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा होता कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। तो मैंने तो ये देखा है कि उस वक्त भी बहुत ज़रूरत होती है मदर्स को स्पेशली समझाने की, फादर्स को समझाने की, कि भाई थोड़ा सा अब आप जो है ना वो अपना जो है वो वे डिफरेंट करें बच्चों को लेके चलने का। बिल्कुल। So then any last comment from you so we can conclude? जी, मेरी तरफ से ये कि मैंने ये नोटिस किया है कि जब तक स्कूल्स जो है वो पेरेंट्स को एज़ अ क्लाइंट समझते रहेंगे, बात नहीं बनेगी। एज़ अ पार्टनर लेकर चलना चाहिए, ताकि हर चीज़ में इन्वॉल्व भी रहें, और ये भी कि ओवर इन्वॉल्वमेंट भी ना हो बिल्कुल। पेरेंट्स की तरफ से। Very well said, very well said. So yes, number of strategies were discussed कि भाई किस तरह से पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। ड्रॉप इन डेज हो सकते हैं, कॉफी डेट हो सकती है। आप अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखें, ओपन रखें, मेक श्योर करें कि आप उनको इनवाइट करें, आप उनसे डिस्कस करें, आप उनसे बात करें। इट शुड नॉट बी ओनली पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जब आप पेरेंट्स मिल रहे हो, आपसे डिस्कस कर रहे हो, इट शुड बी मोर ऑफन, you should be meeting the parents more often, you should be discussing your case with the parents more often, you should be discussing the progress of the child more often. Volunteer opportunities parents के लिए निकाले, जहाँ पे doctors can come and have a speech with the children. There can be engineers who can come and be part of some engineering project. अगर बच्चे कोई engineering वाला project कर रहे हैं तो engineers आके उन बच्चों को suggestion दे, as an expert discuss करें, या कोई writer आ सकता है। Whichever way possible, there are thousands and thousands and thousands of way of engaging all the parents which are there if you are of your students in your classroom. आप homeworks assignments जो parental diaries होती है वो उसके थ्रू भी communications आपकी कंटिन्यूस होनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स, अवेयरनेस वर्कशॉप्स होनी चाहिए, बहुत सारी एजुकेट, जैसे किसी ने कहा कि मिस शाइस्ता ने कहा कि एजुकेट करें आप पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू इंगेज देम इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। बहुत सारे स्कूल के डिसीजन जो आप ले रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, सो दैट दे पार्टनर विथ यू इन वट एवर डिसीजन यू हैव टेकन एंड वट एवर यू आर डूइंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, तो उसमें भी आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। यू नीड टू हैव सम यू नो कल्चरल इवेंट्स आप करें, तो उसमें आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, आप पेरेंट्स के सपोर्ट ग्रुप बनाएं। So there can be thousands and thousands of ways, and you need to be communicating with parents. You have to be transparent with the parents, because together you can do what alone you cannot. So yes, we will all request you to Definitely. please consider these strategies to be utilized in your schools and make education better, as we all aim to do the same. चीजों को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हमारे सफर में हमारे साथ चले। Thank you so very much everyone over here, Thank you Durin so much. Zainab, Thank you, Ms. Saima. Thank you Hannah, very Miss much. Shaista, Miss It Rubina, was and Thank a Mr. you, Kazi ma'am. Thank you. for lovely joining us discussion. Thank you very much. and Very bringing Thank you very fruitful, much. God bless you. very, Thank very you so fruitful and Very lovely good. discussion. Thank Hope you. to see you again soon on the channel. Okay. Thank you. Inshallah. Take care Inshallah. of Thank yourself. you. Allah Allah Bye Hafiz. Hafiz. bye. Allah